यस हेलो अस्सलाम वालेकुम। चलिए भैया आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन देखिए। ओके, दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और इन दिस क्वेश्चन इट इज़ बीइंग आस्क्ड, सो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं। जब तक देखो ये तुम्हारे सामने ट्राइंगल बना हुआ है, ये डिस्टेंस 120 है, 180, 150। द डायग्राम शोज़ अ ट्राइंगुलर फील्ड है, ये खेत का तस्वीर है, ऊपर से ली हुई है, ठीक है, ड्रोन व्यू। और ए बी सी एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर है। और लेफ़्ट कोई बच्चा है जो कि भाग रहा है ए से बी तक, उसकी कांस्टेंट स्पीड ये है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और कलर कोड करता हूँ ताकि तुम लोगों को और आसानी हो देखने समझने के अंदर, ठीक है। ये देखो कि ये जो है ये वाला फ्रॉम ए टू बी, ये वाला फासला, ठीक है। आई एम बेसिकली कलर कोडिंग दिस क्वेश्चन। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड, ठीक है। कलर कोड करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। दिस 120 मीटर का फासला है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। इट्स स्पीड फॉर दिस रीजन इज़ 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, देन व्हाट द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड पार्ट फ्रॉम बी टू सी, लेट मी हाईलाइट फ्रॉम बी टू सी। ये बी टू सी का पोर्शन है एंड दिस पोर्शन हैज़ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इज़ फ्रॉम सी टू ए, ये मैं पिंक से कर देता हूँ, ठीक है। तो सी टू ए पार्ट इज़ दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ तक बच्चा भाग रहा है और इसकी, अच्छा, सी पार्ट की स्पीड नहीं दी हुई है, ठीक है, और वही आपसे पूछी गई है। दिस इज़ द क्वेश्चन, स्पीड ऑफ दिस पार्ट। ये देखो, इस पार्ट की स्पीड पूछी गई है, ठीक है। तो how you are going to find it? Now first of all, these are the two formulas which you must remember. Speed is equal to distance upon time. This is something which is very familiar for the students of physics, ठीक है। And this is some new formula, or I know that you have already studied in the class, that is average speed is equal to total distance divided by total time, right? So for this, you always remember that when the average speed is being asked, you will write down the total distance, that is 120 plus 180 plus 150, that is the total distance, divided by total time, ठीक है। तो that is going to give you the average speed. For this situation, if you ask me कि if I use this formula for for checking up whether this formula will work, if I have to find out the average speed, you see that the average speed is already given over here. So I can, if I use this formula, I can take average speed as 3.6 is equal to total distance. Yes, total distance is also known, ठीक है। total distance is 150 plus 120 plus that, just a second, let me get my calculator. It's 150 plus 120 plus 180. This is the total distance and this is 450. So the total distance is 450 and total time is unknown, right? So let me just write it down as t, okay. Okay, now if I solve it, t will go on the other side, it will become 3.6. T is equal to 450 and t will remain over here, it will be 450 divided by 3.6. So 450 divided by 3.6, it is going to be 125. So the time is how much? 125 seconds, ठीक है जी। Okay, meanwhile I'll also request you to check my calculation with your calculator कि whether I'm doing it correct or not, कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, right? Okay, okay, now for the speed of this C2A portion, you know the distance. Yes, you know the distance, it's 150, it's given over here. Do you know the time? No, you don't know the time. You know the time for this whole journey, but you don't know the time of C to A journey, ठीक है। time is unknown, ठीक है। So for this, what can you do? You can simply say that you have to find out the time of this journey, that is t1. You can find the time of t2. You add them together and subtract from the total to get the time of this journey from C to A. Then you can find out the speed from C to A. Did you understand my mind mapping? Is there anybody who is unclear on this? You can ask me. दोबारा बता दूं?
ए से बी का डिस्टेंस तुम्हें पता है, बी से सी का डिस्टेंस तुम्हें पता है, सी से ए का डिस्टेंस तुम्हें पता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तुमने यहाँ रखा, टोटल टाइम, टोटल टाइम तुम्हें पता नहीं था, एवरेज स्पीड यहाँ पर दी हुई थी, इट वॉज 3.6, तुमने ये रखा, तुम्हें टोटल टाइम ऑफ द जर्नी पता चल गया कि फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ठीक है, इज हाउ मच, इट्स 125। आ रही बात समझ में, 125 सेकेंड आपका निकल आया, राइट। बट you have to just know the time of C to A. You have to find out this time, so that you can find out the speed from C to A, because the distance is already known from C to A, right? So how will you do it? It is A, if you will find out the time for A to B, that will be called T1. You will find the time from B to C, that will be called T2. Okay, you add them together, subtract from the total time to get the time of only C to A. ठीक है, अब सही है, आपको क्लियर हुआ? T1 कैसे निकलेगा बेटा, T1 कैसे निकलेगा, T1 स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। T1 का डिस्टेंस कितना है, इट्स 120, स्पीड कितनी है इसकी, T1 की येलो के कोडिंग से मिलाओ 4 मीटर्स, ठीक है, ये आ जाएगा। मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और T2 कितना है, T2 डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है T2 का, इट्स 180, स्पीड कितनी दी हुई है 3, देख रहे हो, कलर कोड होने के बाद कितना इजी हो गया, समझ में भी आ रहा है। तो 120 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना बना 30, और 180 डिवाइड बाय 3 बनता 3 तो ये बना 60, ठीक है। तो ये टोटल कितना बन गया, 60 प्लस 30 कितना बना टोटल, इट्स 90 सेकेंड्स, ठीक है। तो टोटल में से माइनस करो, 125 माइनस 90 इज 35 सेकेंड्स, ठीक है, 35 सेकेंड का आ गया, ओके। कौन सा सवाल कर रहा हूँ मैं, ये 5th क्वेश्चन कर रहा हूँ, ओके, 5th क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको करते हैं, तो अब ये कितना हो गया जनाब, कितना है यहाँ पर कि आपको इसका वो चाहिए स्पीड, तो आपने क्या रखा, आपका डिस्टेंस इज 150 डिवाइड बाय 35, करें इसको, तो आपके पास स्पीड आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 150 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है, इट इज़ हाउ मच, 4.28, स्पीड इज 4.28 मीटर्स पर सेकेंड, सही है भाई, दिस इज द स्पीड ऑफ from A to C. The cosine rule to find the value of angle BAC back, ठीक है जी, if you have to find out, it's very simple, BAC back, BAC back, then this angle needs to be find out. What will you do? I think it's very easy, you have to apply the cosine rule. So let me take this 120 and 150, and the opposite angle is 180, so I'll start from 180, that is 180 is a square is equals to 120 square plus 150 square, यही है ना भाई, देख लो, लेट मी 120 150, okay, yes it is 120 150 and 180, minus 2 times 120 150 cos angle BAC, ठीक है जी। So how will I find out this? You simply know that these two will go on the other side, so it will be 180 is a square minus 120 square minus 150 स्क्वायर। यहाँ पे एंगल निकालना है ना बेटा, मैंने ये एंगल निकालना है, तो इसीलिए अब इन दोनों को उधर लेके जा रहा हूँ, और ये माइनस वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा, ये इस एंगल के वक्त में ऐसा करते हैं, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 150, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू कॉस एंगल BAC, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर से, 180 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर, ठीक है, ये आया आपके पास जवाब, इसको आपने डिवाइड किया,
-2 × 120 × 150। ठीक है, ये आपको आंसर आ गया। इसका कॉस इन्वर्स निकाला आपने आंसर का। ठीक है, तो आपका 82 पॉइंट करके कुछ आ रहा है। ये सही आ रहा है 82? यस, 82.8। यस यस, इट इज करेक्ट। 82.8। नीचे चलते हैं। वो बियरिंग की बात कर रहा है ऑफ सी फ्रॉम ए टू। तो अब मैं काम करता हूँ, वो कह रहा है बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इस 210। अच्छा ओके, तो ये डायग्राम मैं ज़रा दोबारा से यहाँ पर बना नहीं रहा, बल्कि मैं इसको ये कॉपी कर लेता हूँ इस डायग्राम को। ठीक है, इस डायग्राम को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से डायरेक्ट इसमें। ठीक है, कंट्रोल एन। ये डायग्राम मैंने यहाँ से उठाई। ठीक है, तो मैंने इसमें डाल दी, इसमें काम करूँगा। ठीक है, साफ कर दूँ ताकि नज़र आए आप लोगों को क्या चीज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है भाई, चलो अब गुजारा हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर काम शुरू कर रहा हूँ। बियरिंग ऑफ सी, ये रहा सी, इसका बियरिंग ए से, मतलब ए का नॉर्थ ये रहा फ्रॉम बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए ये दिया हुआ है, और ये 210 दिया हुआ है, 210 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 210। ओके, इट इज़ 210। ठीक है, तो ये बेरिंग यहाँ से चलेगा और ये पूरा घूमता हुआ यहाँ तक, ये कितना आ गया 210। ये पूरा चीज़ है रेड कलर का। ठीक है, और तुमने अभी अभी एक चीज़ फाइंड की है, और वो एंगल है ये वाला, ये ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ। ये एंगल ये कितना निकला था 82.8। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरा रेड में से ये ब्लू पोर्शन माइनस कर दोगे तो क्या ये पोर्शन आ जाएगा बाहर वाला, ये ऑरेंज से मैं मार्क कर रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। सही है, तो आप क्या करेंगे, यू टेक 210 माइनस 82.8। ठीक है, तो 210, थैंक यू, 210 माइनस 82.8, ये कितना है बेटा, ये आ गया 127.2। 127.2, ठीक है, एंगल 127.2। ओके, चेक कर ले आंसर इसका, 127 ठीक आ रहा है। ओके, उसके बाद आ गया नेक्स्ट पार्ट पे, ये कौन सा है, फाइंड द बिगिनिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। ठीक है, तो ए फ्रॉम बी चलें, तो ए से बी यानी ओके, अब इसी डायग्राम में दोबारा से कुछ एडिटिंग करते हैं, ए फ्रॉम बी। ओके, तो अब मैं इसी डायग्राम के अंदर ए फ्रॉम बी की बात कर रहा है, ए फ्रॉम बी, तो बी पे आप ऐसे करके मार्कर रखें अपना, पहले तो मार्कर रख लें बी पर, फ्रॉम बी, ये कह रहा है ए फ्रॉम बी। ठीक है, तो आप बी पे अपना मार्कर रखें, ये रहा आपका मार्कर बी के ऊपर, ऐसे करके नॉर्थ की तरफ आपने कर दिया। ठीक है, ये आपका नॉर्थ आ गया, तो अब इसका ए तक जाना है ना, तो ए तक कैसे जाए, घूमते हुए जाते हैं, तो ऐसे करके यूं करके घूमते हुए यहाँ तक जाए। समझ आई? ये आपको एंगल चाहिए लाल कलर से जो मैंने बनाया है, रेड कलर से, दिस इज़ द एंगल विच यू शुड नो, विच यू हैव टू फाइंड। सो here you can see that if I complete this circle, this will become what, 360, ये 360 बन जाएगा, राइट? और ये जो रेड वाला एंगल है मुझे ये पता करना है, तो अगर ये ग्रीन वाले पोर्शन का एंगल मुझे पता चल जाए, इफ़ आई somehow I know this angle, green angle, I can subtract it from 360, ठीक है, to get the value of bearing of this red angle, ये रेड कलर का एंगल आ जाएगा, राइट? ये रेड एंगल जो है ये वाला आ जाएगा, राइट? तो कैसे मैं करूँगा इसको, सबसे पहले मुझे मालूम है कि दिस बेयरिंग ओवर अप टिल हेयर, ये कितना बेयरिंग, ये कितना दिया हुआ है, इट्स 127, इस कितना था वो, 127.2। ओके, तो इट्स 127.2। अच्छा, अब यहाँ पर आता है सी फॉर्मेशन की बारी। सी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, देखिए, ये एक नॉर्थ है, ये भी एक नॉर्थ है। ठीक है, और ऐसे करके अगर आप इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे, इफ़ यू कनेक्ट देम बोथ, you will find this angle to be this one and this one। देखो ये C बन रहा है,
यू यू, ये सी बन रहा ना, और सी फॉर्मेशन में यू नो दैट इफ़ यू ऐड दीज एंगल्स टुगेदर दैट विल बिकम 180 डिग्री. सो 127 plus something will become 180 degree. So if I subtract 127 from 180 degree, it will be 53.8. So this angle is 53, this green angle is 53.8. if I subtract it from 360, ठीक है, तो it is how much, 316. so आगे चलते हैं, आइए चलते हैं. D is the point on AC that is nearest to T. अब ये बात नोट मैंने अलग से लिखा हुआ है, स्पेशल नोट, ये प्लीज़ रीड कर लीजिए. Read this note. It says the smallest distance of a point and a line is perpendicular distance. Always remember कि if you are speaking about the smallest distance of a point in a line, it is always a perpendicular distance. ये देखिए, ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें. देखिए, ये मैं यहाँ नहीं करता, बल्कि मैं देखो, ये मेरे पास एक लाइन जा रही है, ठीक है, और ये मैंने एक पॉइंट लगाया है, ठीक है, आई पुट इट. अब ये मेरे पास लाइन है, इसका नाम रख लो कि ये एल लाइन है, और ये पॉइंट है पी. सही है. अच्छा, अब मुझे बताओ कि नियरेस्ट पॉसिबल इसका डिस्टेंस कौन सा होगा. अभी मैं अगर मैं ज्वाइन करूँ ना, ये देखो, आई कैन ज्वाइन दिस लाइक दिस एज वेल, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते. ये भी डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन का, है ना, ये भी डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन का, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये सारे डिस्टेंसेस. लेकिन जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा, इट विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ऐसे समझ आ रही है. ये एंगल जो बनेगा 90 डिग्री पे, ये जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट, ये सबसे स्मॉल होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. तो इस वजह से व्हाट कैन आई डू, आई कैन सिंपली डू व्हाट, के इट इज़ आस्किंग मी D इज़ द पॉइंट ऑन AC लाइन के ऊपर D इज़ द पॉइंट दैट इज़ नियरेस्ट टू D, दैट इज़ नियरेस्ट टू B, वो B के नज़दीक है. कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम D टू A. आओ ज़रा इसकी डायग्राम के मुताबिक लेट अस ड्रॉ दिस एंड सी व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से. कंट्रोल V, यस, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि D इज़ अ पॉइंट ऑन AC एंड इज़ नियरेस्ट टू B, यानी कि हमारे पास एक D एक पॉइंट है और नियरेस्ट टू B है, मतलब यहाँ पे कहीं एक पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट है D इज़ अ पॉइंट ऑन AC, सॉरी AC पर पॉइंट है ना, AC पर इट विल बी अ पॉइंट ऑन AC एट इज़ नियरेस्ट टू B, यानी इट विल बी लाइक दिस हियर, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, ठीक है. और दूसरी बात क्या बोला है कि calculate the distance between D to A. You have to find out the distance between D to A. Now you can simply know that if it is nearest to B, the angle forming over here must be of 90 degree. ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, राइट. तो अगर आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट, तो आप क्या करेंगे, what will you do, you will simply take this distance, ठीक है, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है. और वो क्या पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा आपसे, ये पॉइंट D है आपका, ही इज़ आस्किंग यू अबाउट दिस डिस्टेंस, वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, D से A की, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, आपके पास अभी आपने यहाँ का एंगल निकाला था, व्हाट वाज दैट, आई थिंक इट वाज व्हाट 82, लेट मी चेक इट, कितना एंगल था जो ऊपर आया था आपका, जो एंगल आया था 82, BAC एंगल, ये BAC यही वाला एंगल है ना, BAC यही 82 पॉइंट, कितना आया था 82.8, राइट. तो इट वॉज 82.8, ठीक है ना. तो अब क्या करें इसके अंदर कि हम यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व, नहीं बल्कि ओके यहीं पे कर लेते हैं. तो ये एंगल है 82.8, ये वाला एंगल 82.88, ये एंगल यहाँ तीर मैंने लगा हुआ, इट्स 82.8 आ चुका है. तो अब आपको ये वाला साइड चाहिए AD कैसे आएगा, हाउ विल यू फाइंड आउट AD, बोले AD के लिए कौन सा रेशो लग रहा है,
ये 120 हाइपोटेन्यूस है आपके पास, ये हाइपोटेन्यूस है, ये साइड एंगल के साथ एडजेसेंट है। सो का टोआ लिखिए, देखें चेक करें, ये साइड एडजस्ट साइड किस में आती है, एडजस्ट साइड में का में आती है, तो कॉस एंगल 82 कॉस 82.8 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड दैट इज़ यू डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, तो इट इज़ AD डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज़ 120, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करो तो इट्स 120 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 82.8, ये मैं वहीं कर देता हूँ ताकि आपके पास इधर रिकॉर्ड पे रहे, है ना। तो इट विल बी cos 82.8 मल्टीप्लाई बाय 120, कितना बनेगा, ये AD के बराबर, इक्वल्स टू AD। करें इसे सॉल्व, तो इट विल बी cos 82.8 मल्टीप्लाइड बाय 120, कितना बन रहा है, 15.03 या 04 मेरा बन रहा है, तो ये भी करेक्ट है 15.04, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू। ओके, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला ये सवाल आ गया, इट्स वेरी इजी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। आइए ये करते हैं। ओके, द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डायग्राम शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। 200 स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये डायग्राम दी हुई है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कर क्या रहे हैं, डिटेल क्या है इसकी, कि टाइम टेकन बाय टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक मसला हल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है बच्चों को, ठीक है। ओके, आप इसका मीडियन निकालिए। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं बेटा, फॉर मीडियन यू नो दैट कि दिस इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ना, ये टोटल फ्रिक्वेंसी है, टोटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो आप क्या करें, टोटल फ्रिक्वेंसी का 50% इज़ द मीडियन टर्म, वो मीडियन टर्म होती है, मीडियन नहीं होता। आप उसको क्या करेंगे कि उसको आप रिलेट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इट इज़ 200 का 50%, कितना बनेगा 100 से आप लेंगे, लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट बिगर, ठीक है, सो दैट आई कैन कम अप विद द करेक्ट वैल्यूज़। इट विल बी 100 विल गो ओवर हियर लाइक दिस, स्केल से आसानी से हो जाता है, आप तो स्केल से करेंगे, और मेरे मुताबिक तेज़ी के साथ अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर आपको ये 34 बन रहा है, आई गेस है भाई, सही बना ये 34, सही 34 ठीक हो गया। ओके, तुमने या 34, अब वो पूछ रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है Q3 माइनस Q1। अब व्हाट इज़ Q1, व्हाट इज़ Q1, व्हाट इज़ Q2 एंड व्हाट इज़ Q3, पहला सवाल ये उठता है। तो यू मस्ट नो कि Q1 इज़ बेसिकली द 25% ऑफ द frequency, total frequency. Q2 is the 50% of the total frequency. It is also called median, median जो भी आपने निकाला, and Q3 is the 75% of the total frequency. ये आपने याद रखना है, ठीक है। हम अपने डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इन 4 पार्ट्स के लिए एक एक करके हैं। अच्छा, एक यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे पता है कि Q3 माइनस Q1 इज़ द इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये IQR होता है, IQR, ठीक है। तो Q3 कितना है, 200 का कितना है 75%, तो इट विल बी 200 का 75%, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.75 इज इक्वल्स टू 150। रुकिएगा एक सेकेंड, पहले रुकिएगा, ये मेरा 150 आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 150 को यहाँ पर ढूंढूँगा, ठीक है। 150 ये 40 और इसके दरमियान में 150 है, ज़रा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए
दिस विल बी द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस। तो ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से नीचे जाएंगे। सही आया हूँ मैं? एक मिनट, एक मिनट इसका, एक मिनट मैं खोलना दोबारा से। तो 48 और 52 के बीच में आना चाहिए ना, 50। हाँ बेटा एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हो बेटा? ये 50 इसके बीच में आएगा ना, देखो ये 41 के बीच में यहाँ पे कहीं आएगा, है ना। तो मैं इसी के बीच में जाते 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 यहाँ पर आया था, तो ये इधर आने के बाद जब मैं नीचे जी जाऊँगा। सर। हाँ एक मिनट बेटा, इसके बीच में कहाँ गया मैं? ये होते 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 यहाँ आया, और यहाँ से सीधा 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 मैं नीचे आया, तो ये 43 आ रहा है, ये आ रहा है 43, ठीक है। ये मेरा Q3 आ रहा है, सही है, ये Q3 है। और Q2 क्या है? क्योंकि मुझे देर इसलिए लग रही है, आपको खुद भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये सारा मैं कर रहा हूँ सिस्टम टूल के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 200 का कितना लेंगे, 25%, 0.25 से मल्टीप्लाई करें, इट विल बी 50। ये रहा 50, 50 से आप सीधा जाएंगे इधर, टच किया आपने, यहाँ पर आया, और ये नीचे आया, इधर 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 इधर, ये आ गया, ये कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है, तो 25 हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 43 माइनस 25, 43 माइनस 25 किया, 43 माइनस 25 किया, कितना जब 18, 18 आ रहा है आंसर। अरे वाह भाई, बिल्कुल ठीक आ रहा है, माशाल्लाह भाई, वाह भाई वाह, 18, सही है भाई। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक मोर देन 40 मिनट्स, अब 40 मिनट से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स, ओके। तो मिनट्स आर गिवन ओवर हेयर, ठीक है, 40। फॉर 40 व्हाट विल यू डू, फ्रॉम 40 यू विल गो अप 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 टिल द ग्राफ। पहले ग्राफ के ज़रिए से टच करें, तो ये कितना 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 कितना, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे आ रहा है, एंड देन इफ़ यू गो ऑन दिस साइड, सीधे जाते 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 इट विल बी 140, राइट। तो 140 स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो इतना ही टाइम लग रहा है। अब 140 से टोटल स्टूडेंट्स आर 200, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स माइनस दोज स्टूडेंट हु टुक लेस देन 40 इज इज 140, तो सब्ट्रैक्टेड, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ 60। 60 सही आ रहा है, सही आ रहा है भाई, वाह माशाल्लाह, 60 भी ठीक आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके। 60 आंसर बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, रॉबर्टो रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द कॉइन ही हैज़ एट होम, द टेबल शोज़ द रिज़ल्ट, ये रहा रिज़ल्ट, फाइंड द रेंज। अब ये जो सवाल है बड़ा सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं कि फाइंड द रेंज, आपको रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, फाइंड द रेंज, आपको रेंज फाइंड करनी है। रेंज इज़ व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसके अंदर, 50 है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 49 इसका आंसर है, चेक करें भाई, 49 आंसर है, बिल्कुल ठीक है, रेंज हो गया। मोड क्या है, मोड वो वैल्यू होती है द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी। इसके दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं आप कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली जो होती है वो होता है मोड, राइट। तो द थिंग विच इज़ ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, विच इज़ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, टेक चेक, दिस इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 20, तो 20 इज़ द मोड, लेट मी चेक, yes 20 is the mode, very good, okay। Find the median, for median what would I require, what will I require for median, what will I do। देखिए मीडियन के लिए क्या करना चाहिए मुझे, मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ें जो मौजूद हैं, इसको करने का तरीक़ाकार क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको खुद से फाइंड करनी होगी जिस तरह के डेटा में मीडियन निकालने के लिए। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मैं ये एक दो वैल्यूज़ मिटा देता हूँ यहाँ पे ताकि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज लिख सकूँ। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है बेटा कि फर्स्ट वन इज़ 3, देन ऐड दीज टू तो गेट 4,
4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 4 13 और 13 plus 2 कितना हो गया, 13 plus 2 15। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी अब 15 डिवाइड बाय 2 करें, कितना आया 7.5। ठीक है, तो आपने ये देखना है फ्रॉम द स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड यू विल सी, एंड नहीं सॉरी, यू आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेकिन यू विल सी इट फ्रॉम हेयर। ये मैं ग्रीन कलर से अलग से दिखाऊं कि आप यहाँ से चलेंगे इसके अंदर। इफ़ समबडी हैज़ 3 रुपीज़ कैन ही गिव यू 7.5? नो, ही कैन नॉट। सो go to this one. If somebody has 4 rupees, can it give you 7.5? No, it cannot. Right? Now move on to this one. If somebody has 7 rupees, can it give you the 7.5? No, it cannot. Right? So you will go for the next value. This is 9. Yes, if somebody has 9 rupees, can it give you 7.5? Yes, it can. So the value of 10 is the answer, I guess. What is that answer? 20 by 10. Yes, 10 is the answer. That is why 10 is the answer. समझ आई? दिस इज़ द मिडिल वैल्यू, दिस इज़ हाउ यू गो फॉर इट। ऐसे सवाल में मीडियन निकालने का ये तरीका होता है। वैसे तो आपके पास जो डेटा ऐसा होता है उसमें तो अरेंज करके आप मिडिल टर्म निकालते हो, दैट इज़ योर मीडियन। राइट? ओके, आ जाइए भैया, आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, वर्क आउट द टोटल वैल्यू ऑफ रोबर्टो कॉइन। टोटल वैल्यू रोबर्टो के कॉइन की कैसे आएगी? बहुत सिंपल है। टोटल वैल्यू के लिए व्हाट विल यू डू? आपको पता है कि सेंट्स दिए हुए ना, ये सेंट्स में पैसे दिए हुए, तो आप सिंपली क्या करें, मैं ये सारी इस पर जो गंदगी की वो सब मिटा देता हूँ ताकि आपको सवाल और समझ में आए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसके अंदर, तो नज़र आना बंद हो जाती है चीज़ें। ओके, तो व्हाट विल यू डू? यू विल गो फॉर दिस। ठीक है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 4 प्लस 50 इंटू 2। ये आप करेंगे। ये देखिए, इसने ये चीज़ की हुई है, 220 आया। मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 226। वर्क आउट द मीन, आपको मीन निकालना है। तो मीन के लिए क्या करेंगे? मीन के लिए यू नो द फार्मूला। द फार्मूला इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। इट इज़ फॉर द मीन इज़ रिटन एज एक्स बार इज इक्वल टू, और सिंपली यू कैन कॉल इट मीन। ये मीन भी कहलाता है। मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एन। बेसिकली this is the ungrouped data. Remember, this is ungrouped data, so that is why this formula is this. ठीक है, अगर वो ग्रुप डेटा होता तो आपको याद होगा आगे ग्रुप डेटा का सवाल भी आ रहा है। ये ग्रुप डेटा का मीन निकालने का, ग्रुप डेटा का हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा, वो भी एक्स बार ही कहलाता है, लेकिन इट हैज़ अ फार्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ठीक है, ये अलग फार्मूला होगा, वी विल कम टू इट later on. So here when you go, this is sigma f. How much is sigma f? It is 220 divided by how much is the number of coins? It is 15 coins. You divide by 15, you are going to get the value. 220 divided by 15, it's how much? 14.66. Let me check the answer. It's 14.66. Yes, 14.66 is the answer. 40.66 is the answer. This is the correct answer. Right? Okay. Now we are going towards this part. अच्छा, let me see कोई और part भी, फिर उसके बाद 7 क्वेश्चन है। ओके, आइए देखते हैं। ये पूरे 2.5 घंटे का पेपर होता है। ओके, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं। ओके, अब आइए जनाब, ये वाला देखिए। इन दिस टेबल, first of all, that histogram is given to you, ठीक है, and this histogram shows information about the masses of 100 boxes. ये 100 boxes के masses के बारे में आपको information is given over here, right? What is this frequency density formula? Frequency density is equal to frequency divided by class width, ठीक है। तो the class width, you can see that there are 3 boxes. This is box number 1, this is box number 2, and this is box number 3, right? Are you getting the point? Right. So these are 3 boxes, 1, 2, and 3. So for this first box, this is the class width, that is from 0 to
10. For the second box, the class width is 10 to 15, and for the third box is from 15 to 30. ऐसा ही है भाई. तो first class width is 0 to 10, then 10 to 15, and then 15 to 30. These are three class widths. Okay. What will be the frequency? Now for the frequency, you can simply say for the first box is, if I speak about this first box, box 1, what will be the frequency? You know from this formula, if frequency divided by class width is frequency density. So if I have frequency density for the box 1, the frequency density is 3. So I will write 3 is equals to class width is frequency divided by class width is how much? It is 10. So the frequency will be equals to, frequency is equal to 30. 10 will go over there, it's become 30, right? So first part, the frequency is 30. Okay. For the box 2, help me out in finding the frequency. The class, the frequency density is how much? 8. So it will be 8 is equal to how much is the frequency? You don't know about it, and the frequency, the class width is 5, right? So it implies that frequency is 8 5 is a 40. It is 40, right? This frequency is 40. Now for the third one, you go for the box 3. You don't have to write down. Basically, I'm explaining this. That is why I'm using all these, doing this fancy way. Otherwise, I would have done it like this, right? Okay. So frequency dense is the for box 3. This is how much is 15 to 30? It is 15. No, sorry. This is the class width. The frequency density is 2, and it is equal to frequency divided by how much is this? This is 15. 15 to 30 is 15. The frequency is 30, right? Okay, all these frequencies are known. Can I find out the sigma f? Yes, I can. Add them up together. 70, 70, 80, 90. Okay, the frequency is 100, right? Okay. What about the sigma fx? Okay, for f, you know all these f's, okay, but for x, what is x? You remember when you have data like this 10 to 15, 15 to 30, what do you do for the x? You take the middle value. Everybody remember this? For the mean, you have to take the middle value. इसके लिए 5 होगा, इस केस के लिए क्या होगा, इस केस के लिए सेकंड केस के लिए it will be 12.5, and for the third value it will be what? 15 और 30 के दरमियान में क्या आएगा? What will be in the middle of it? You just add them up together. 15 plus 30, this divide by 2 करें तो it will be 22.5. So this will be 22.5. तो box 1 को आप multiplied by 5 कर दें, because this will be the value in the middle of it, right? ठीक है, तो it will be 5 3 is 15, it will be 150. Similarly, इस बॉक्स के मिडिल में क्या पॉइंट आएगा? दिस विल बी दिस पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट होगा, एंड दैट पॉइंट विल बी 12.5, right? So you multiplied it by 12.5, and the third one is 22.5. इसके बीच में यहाँ पर कहीं 22.5 यहाँ पर आएगा, तो it will be, the third one is 22.5. देख रहे कितना उल्टा काम दिया हुआ था इसने करने के लिए, राइट? और 40 multiplied by 12.5, it is 500 total. This is 30 multiplied by 22.5, ये कितना है? 675. ठीक है, तो इन सब का सिग्मा एफ एक्स निकालिए. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स. एफ कितना है? 150 प्लस 500 प्लस 675 डिवाइडेड बाय टोटल इज 100. सो 675 प्लस 500 प्लस 150, this divided by 100. Okay, this, it's how much? 13.25. The answer is 13.25, and I know that this answer is correct. 13.25. See, for frequencies it has, if you are just able to find out the frequencies, right,
it's 30, 50 and 30, 30, 40, 30. It is going to give you 2 marks and 1 mark for only 2 of them. Okay, and finally for m1 it will be, if you find out the midpoint of them, that will be m1 this and this. Okay, at sigma fx के लिए if you put the value, you're going to find the alternate. There are alternate methods of every method. Okay, they would have written it in the other form as well. You don't go for the alternate method, you go for the first method, which is easier. Okay, now this question. Okay, for this question, this is question number 7. Okay, 7, 8, 9, 10. Okay, the 3, 4 questions are left. Don't worry, it will be better if we have what can I say, if we have another session. Most probably I'll tell you, मोस्ट प्रॉब्ली आई टेक इट टुमारो. ठीक है, ये क्वेश्चन, ये वाला मैं छोटा सा सवाल है, इसका मैं स्टार्ट करता हूँ. अच्छा, आप बताइए कि शैल आई कंटिन्यू फ्रॉम हेयर और शैल आई, ये है फार्मूला आपके पास मौजूद. यू जस्ट लुक फॉर दिस, गो फॉर दिस फार्मूला. In this question you are going to be judged on the basis of your skill to how you are going to make the equations. आप equations कैसे बनाते हैं, this will be judged over here. तो इसके लिए एक छोटी सी चीज़ जो मैंने कल रात में खुद ही दिमाग लड़ाया, मैंने कहा यार ये एक छोटा सा कोई फार्मूला ही बना दूँ इसका, ताकि बच्चे आसानी के साथ इसको देख के फटाफट समझ जाए कि हाँ भाई ये फार्मूला है. जिनको याद करने की आदत है उनको भी आसानी मिले. एक सेकंड लीजिएगा. जिनको याद करने की आदत है उनको ये आसान सा फार्मूला बहुत आसान लगेगा. देखो भाई, ये क्या चीज़ है, अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालिए ना, अगर इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट. ठीक है, टोटल कॉस्ट बराबर होती है कि जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसकी गिनती, यानी नंबर ऑफ दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच, यानी एक आइटम की कॉस्ट. फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू बाय फ्लावर्स, ये फ्लावर्स हैं. ठीक है, अगर एक फ्लावर की जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है. ठीक है, नहीं 5 रुपीज़ नहीं लगाता. एक फ्लावर की जो प्राइस है वो 3 रुपीज़ है. ठीक है, 3 रुपीज़ है. और हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर, ये कितने फ्लावर्स हैं, 5 फ्लावर्स. ठीक है, फार्मूला क्या कह रहा है, मेरा फार्मूला कह रहा है कि n यानी नंबर ऑफ़ फ्लावर्स कितने हैं 5, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच इज़ 3. तो कितने के हो जाएंगे, 15 रुपीज़ के. टोटल कॉस्ट जो बनेगी वो 15 रुपीज़ बनेगी. राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज़ वॉट यू नीड टू यूज़ फॉर दिस फार्मूला, फॉर दिस क्वेश्चन. देयर आर द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज is 21 cent each. It is the cost of each. This is CE of orange, 21. Now Alex buys X oranges, yani the value of N is X. ठीक है, this is the value of N. ठीक है, and Bobby buys this much oranges, yani this is the value of N for Bobby. ठीक है, okay, total cost is this much. How will you find the value of X? The simple equation is forming. Let me check how much is the cost which Alex has to bought. कि Alex को जितनी कॉस्ट देनी पड़ी है प्लस Bobby's cost will be added together. ठीक है, to give the total cost, है ना. तो Alex की कॉस्ट कैसे आएगी, how will you find out the Alex cost? It will be, he is getting x oranges, so it will be 21x according to this formula. Okay, each is 21 and Alex has got x oranges, so 21x plus Bobby cost, it's x plus 2, यानी कि 21 multiply by x plus 2. ठीक है, and this whole will be equals to 4.2, right? So you just multiply them, it will be like 21x plus 21x plus 42 equals to 4.2, right? तो ये करें आप 4.2. अच्छा रुकिए एक सेकेंड, ये $42 था, तो इट विल बी 420. ऑब्वियसली इट विल बी टेकन एज 420 सेंट्स, क्योंकि अब सब सेंट पे चलेगा ना, तो इट विल बी टेकन एज 420 सेंट्स. जी सर. यस सर.
अब ये सवाल थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया और थोड़ा सा और घूम गया। ये देखिए, ये 5 नंबर का सवाल है, इट्स वेरी इजी। लेकिन ये इक्वेशंस अब आपने ख़ुद से बनानी होंगी, तो ख़ुद से बनाने की कोशिश करें। मैं आपको इसके अंदर हिंट देता हूँ कैसे करना है। आइए मैं आपको इसमें बताता हूँ कैसे करना है। कॉस्ट ऑफ वन रूलर, एक रूलर, अब देखो फिर वही वाली बात, मैंने क्या बताया था, n इंटू कॉस्ट ऑफ ईच, एन सी ई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच क्या है, वन रूलर का है आर, ये कॉस्ट ऑफ ईच है लेकिन ये रूलर के लिए है। एंड फॉर प्रोटेक्टर इट इज़ कॉस्ट ऑफ ईच विच इज़ पी। ठीक है, तो द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 rulers and 1 protector means for this I am working for this one. Let me highlight it so that you can understand that I am working on this one. I am working on this one. मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो yes, the total cost of 5 ruler means 5 ruler cost each of each is r, तो 5r plus 1 protector, तो 1, what is the cost of 1 protector is p is equals to 245. Similarly, tell me the equation for this. 2 rulers, so 2 cost of each is r, so r plus 3 protector, so 3p is equals to 215. Now this has become an equation. You can simply solve it simultaneously. What I need to do is I can multiply this equation by 3, so it will be this equation multiplied by 3, so it will be 15 r plus 3p is equal to 245 into 3, 245 into 3, so it will be 735. Okay, when I subtracted, this will be subtracted, so it will be what, 13 r, these both will be cancelled out, and if I subtract 735, sorry, 215 from 735, it will be 520, this 520, and r is equal to 520. It's a negative sign obviously, but these both negative sign will be removed because on both of the side there is negative sign, they are getting multiplied, it will be removed. R is 520 divided by 13, 4, so it's 40, right? So R's value is 40. Let me check the value of R. R's value is 40. Just a second. Use 40. I have just solved it. It's a very simple simultaneous sort of equation. I think everybody knows how to solve it. I'm just, for the sake of completion, I'm doing it, right? So I put the value of 40 over here. That will be 5 multiplied by 40 plus p is equal to 245, or p is equals to 245 minus 200 is equal to 45. P's value. It's just asking me about the protector, so that is why it's 45. Now let me move on to the C part. Now this is a little tricky part, but it's not difficult at all. Let us see. Write down an equation in terms of, and show that, you have to show that it becomes this. What is this question asking me? That Carol walks 12 km at this speed and then 6 km at this speed, and the total time is given as 5 hours. So my question to you is, what is the connecting factor? Always remember, this is very important. What is the connecting factor? What is connecting factor? What is connecting these two situations together? Answer. Yes,
The time is the connecting factor. So you have to figure out time from here and time from there. Are you getting my point? So first of all, let me go up and show you the formula which we have used. You already know about the speed time formula and all that. Okay, blah blah blah. I think it came in this part, I guess. It all came over here. Yes, this speed is distance upon time. So I'm using the same formula in this part as well in this question. Yes, the time is the connecting factor. So first of all, to find out the time for both the situation, speed time is equal to distance upon speed. So for the first situation, let me highlight this yellow. Okay. So first of all I'm doing it for the first situation. Okay. What is the time? Time is equals to distance is 12 kilometer divided by speed is x. So this is the total time for the first situation, right? Now let me go on to the second situation. Second situation is given over here, that the further distance which is covered by the body is in this much kilometers, right? So this will be T2. Let me color code it so that you can understand. Okay, this is the second situation. This is for the second situation, right? So it will be how many kilometers? Sorry, it's 6 kilometer divided by this is the speed, so x minus 1. Okay, now how much is the total time? Total time means it is saying that T1 plus T2, add them up together to get 5 hours, right? So how much is T1? X plus 6 upon x minus 1. It all will become 5, right? Now start solving it. For this type of situation, you will take LCM, you will divide it by the LCM will be just x minus x and x minus 1, all both of them. This will go, you know that I do it this way, that I take a pencil, okay, and I write x multiplied by x minus 1 and x multiplied by x minus 1 with both of these fraction. X is cancelled by this x, so 12 multiplied by x minus 1 will come over here. It will be 12 multiplied by x minus 1 plus 6, x minus 1 will be cancelled by this x minus, so 6 multiplied by just x. Okay, and this will be equals to 5. Now solve it out. It will be simplified. It will become what? It will be, I'm doing this question from here, I'm doing this over here. It will be 12x minus 12 plus 6x divided by, this whole will go on the other side, so it will be multiplied by 5, so it will become 5 multiplied by x into x minus 1. Okay, now what? 12x plus 6x, it will be 18x minus 12 is equal to, it will be 5x multiplied by x minus 1. When I multiply them, it will be 5x squared minus 5x, 18x minus 12. This will go on the other side, it will be 5x square minus 5x minus 18x plus 12 equal to 0. So it will be like 5x square. This will become what? 18 plus 5, it will be minus 23 x plus 12 equals to 0. So is this the situation which is given over here? Is the equation? Yes, it is. Yes. Now you come up with this. You have to factorize this. You have to find out the factors of this. For this, how you are going to solve by factorization, it will be done with the help of middle term break. You have to factorize this by the middle term break. That is, you have to find out, you have multiplied this 5 with this 12 multiplied by 5, 12 multiplied by 5, it will become 60. So you have to find out the factor of 60 so that it will be added to become 23. So I simply go for 20 and 3. I know that there are many other factors, but by my experience I can say that it will be 20 and 3, which will be
when we add them up together it will become 23, and when multiply them together it becomes 60. So how will I write? I simply write 5 x square first. This is the bigger brother. The bigger brother will come here. X will be written like that, and simply 3 along with x, okay, plus 12 will come also. What about the sign? The bigger one has the father's sign, so it will be minus, and here I'll also put a minus sign because if I have to add them together to become 23, right? So if I take out common from here, it will be 5x, which will be taken out as common, so it will be x minus 4, okay, minus, if I take out 3 common, the minus 3 will be common, it will be x minus 4, right? So these are the two factors, that is 5x minus 3 and x minus 4. These are two factors, and in this next question it is giving me that this is the same situation, but this whole will be equal to 0. So when I equate it to become 0, it will be 5x minus 3 equal to 0 and x minus 4 equal to 0. X is equal to 3 upon 5, x is equal to 4. So this is my answer. 3 upon 5 and 4, right? Wow. Now it is asking me to find out the Carol's speed, walking speed during the final 6 kilometers. So for the final 6 kilometer, what is the speed? It is x minus 1, right? So x is what? 3 upon 5 for the final 6 kilometer. Okay, so I can take this one or this one. Let me check the answer here. Let me see what here trying to say. It is 3. This is 3 they are taking. Okay, so they have taken this as a speed, right? So it will be x minus 1. It is 4 minus 1 equals to 3. So this is 3 kilometers per hour. अच्छा, ये देखा, हमने पूछा, अच्छा सवाल था, हमारे पास जवाब भी आ गया, सही है। अच्छा, अब आगे मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मैं यहाँ से इसको डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह फिर मैं, कल या आज रात में, दोनों बातें पॉसिबल हैं कि कल के दिन में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं दोबारा से सहमत दूंगा। टुमारो आई कॉल यू, आई सेंड यू अ मैसेज। ऑब्वियसली आने से मतलब थोड़ा टाइम पहले ही बताऊँगा, तो मतलब आप लोग फिर अपना टाइम मैनेज करके, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 आध घंटा और लगेगा, लेकिन ये पेपर पूरा हो जाएगा। इसके लास्ट के पार्ट में 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, उसके लिए बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ करना ज़रूरी है, वरना फिर वो उल्टा सीधा होगा तो बाद में गड़बड़ होगी, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, राइट? तो इंशाल्लाह हम इनको बैठ के कल या कल के दिन में इंशाल्लाह लाजमी क्लास कर लेंगे इसकी, ठीक है? Right, sir. चलिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह, ताहा, उमैस, बाबरा, जितने बच्चे और भी थे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुदा हाफिज़। Okay, Allah Hafiz, sir. शुक्रिया बेटा, थैंक यू, खुदा हाफिज़। Allah Hafiz. खुदा हाफिज़, अल्लाह